Assalamu alaikum. Welcome once again in the series of video lectures for the unit gravitation. Our today's topic is free fall. In the daily life, we observe it that Earth attracts every other object towards itself. If we will drop this pen, it is having mass and the Earth will attract this pen towards itself because Earth has also mass. So this very force which comes into play between this pen and the Earth is known as gravitational force. Now, when I will drop this very object, Earth will attract it, but at the same time, the air surrounding will exert upward force on this pen, which we call as air resistance. Now, if this pen is dropped from this very height and we will neglect all the forces, we will take only one force into consideration, that is the attractive gravitational force of Earth. At that time, we will say the fall of this pen towards Earth as free fall. तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का फॉल होना, किसी भी बॉडी का ड्रॉप होना टुवर्ड्स अर्थ ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो उस वेरी कंडीशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। और वो बॉडीज जो फ्रीली फॉल करती है उन बॉडीज को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कहते हैं। तो ये यहां हम लिख के रख लेंगे। तो यहां हमने ये लिख के रखा कि जब बॉडी फॉल कर लेगी अर्थ की जानिब ओनली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको कहते हैं फ्री फॉल। और जो बॉडीज बन जाती है उनको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। नाउ फर्स्ट इट वाज कंसिडर्ड दैट द हैवी बॉडी fall towards earth in less time than a lighter body and it depends upon the mass। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसका मास ज्यादा होगा और दूसरे का कम होगा। एग्जांपल लेंगे, हम एक ओपन पेपर लेंगे और एक स्टून लेंगे, तो जब उनको ड्रॉप कर लेंगे तो देखने में ये मिलता है कि पहले पत्थर जमीन से टकराएगा, जमीन तक पहुंच जाएगा और पेपर बाद में पहुंच जाएगा, दैट विल टेक टाइम। तो ये पहले ऐसे सोचा जाता था कि इट डिपेंड्स अपॉन द मास। जिनका मास ज्यादा होगा दे विल रीच फर्स्ट, दे विल टेक लेस टाइम, और जिनका मास कम होगा दे विल टेक मोर टाइम। बट द फर्स्ट साइंटिस्ट हु proved it that it is wrong, that the falling of the bodies towards earth is independent of the mass of the body, and it does not depend upon the mass of the body. Whether we will drop a heavy object or a lighter object from certain height at the same time, they both will take the same time. This was done by Galileo Galilei when he dropped a coin and a feather from the leaning tower of Pisa. So Galileo observed that both took the same time, though both was having different masses. तो इसलिए जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती हैं, फॉल ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, it is independent of mass. It does not depend upon mass. So this was practiced by Galileo Galilei in Leaning Tower of Pisa. But Galileo could not verify it mathematically. Hence, some people, we can say people does not obey this very saying that it is independent of the mass. After that, another scientist
रॉबर्ट बॉयल। Robert Boyle. Robert Boyle performed an experiment. What was that experiment? Robert Boyle took a big jar, inverted it. First, took coin and a feather. रॉबर्ट बॉयल ने एक फेदर और एक कॉइन एक बड़े से जार में लिए, उस जार को इन्वर्टेड किया और उसमें वैक्यूम कंडीशंस क्रिएट की। इसमें से तमाम एयर बाहर निकाला, तो वैक्यूम कंडीशंस जब क्रिएट हो गई, तो जब ये दोनों फॉल हो गए, दे बोथ टुक द सेम टाइम, कॉइन एंड फेदर, they both took the same time, and this was an experimental evidence that the freely falling bodies are independent of their masses. They does not depend upon their masses. तो अब डेली लाइफ में जब हम पेपर और स्टून को ड्रॉप कर लेंगे, तो डेफिनेटली पेपर विल टेक मोर टाइम एंड स्टून विल टेक लेस टाइम। तो स्टून और पेपर की बात एग्जाम्पल के एतबार से हम लेते हैं, तो एक्चुअल क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, पेपर का सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स मास, और इसका सरफेस एरिया लेस है एज कंपेयर टू इट्स मास। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है जो आयर रेजिस्टेंस होती है, द आयर रेजिस्टेंस इज लेस फॉर स्टोन एंड आयर रेजिस्टेंस इज मोर फॉर पेपर। तो यहां लेस सरफेस एरिया, तो इससे लेस आयर रेजिस्टेंस मिल जाएगी, और मोर सरफेस एरिया से मोर आयर रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो ज्यादा आयर रेजिस्टेंस ऑफर होने से ये कम टाइम ले, ज्यादा आयर रेजिस्टेंस ऑफर होने से इट विल टेक मोर टाइम, और यहां कम आयर रेजिस्टेंस ऑफर होने से ये कम टाइम लेती है। तो यहां ज्यादा टाइम लग जाता है ड्यू टू मोर आयर रेजिस्टेंस, और यहां कम टाइम लग जाता है ड्यू टू कम आयर रेजिस्टेंस। तो अब ये जो डिफरेंस हम डेली लाइफ में देखते हैं, पेपर टेक्स मोर टाइम टू रीच द सरफेस एंड स्टोन टेक्स लेस, तो इट्स रीजन इज एक्चुअल आयर रेजिस्टेंस। तो इसलिए ये यहां से एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हुआ, बाद में न्यूटन ने इसको मैथमेटिकली वेरीफाई किया बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी। तो अब क्या होता है, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती है, तो यहां से एक और टॉपिक वजूद में आता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। तो जब एक बॉडी सरफेस की जानिब फॉल हो जाती है, अर्थ की जानिब फॉल हो जाती है, तो एक्चुअल जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द टू बॉडीज। अब एक स्टोन या एक ऑब्जेक्ट अर्थ की जानिब जब गिर जाता है, तो जितनी डिस्टेंस कम हो जाएगी उतनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वी विल से द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस and it increases at uniform rate. It increases at uniform rate. तो increasing acceleration means increasing velocity means acceleration. तो जब एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो we will say it is acceleration. अब एक्सेलरेशन आ जाती है इसमें ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, एंड दैट वेरी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो यहां हम ये लिखेंगे
तो यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। एक्चुअल हम ये भी समझ लेंगे, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसको हम ग्रेविटी के नाम से पुकारते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। कैपिटल जी से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोट होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, ये डिनोट होती है बाय स्मॉल जी। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिलहाल आप याद रखिएगा, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है, इट इज 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है बाय 9.8 मीटर सेकंड एवरी सेकंड। हर एक सेकंड के बाद जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये जी का वैल्यू होता है। अब यहां हम एक और कन्वेंशन सीख लेंगे, जी को कब पॉजिटिव लेंगे और जी को कब नेगेटिव लेंगे। तो बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड्स, जब बॉडी डाउनवर्ड्स यानी जमीन की जानिब फॉल करती है, तो उस वक्त क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो यहां एड होती है, एडअप होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो एट दिस टाइम वी टेक जी एज पॉजिटिव। तो अब अगर हम एक बॉडी को थ्रो कर लेंगे अपवर्ड्स, बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स, तो हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो अपवर्ड्स जब हम एक बॉडी को फेंक लेंगे, तो अर्थ अगर ये है, यहां से एक बॉडी को अपवर्ड्स फेंका, तो अर्थ हमेशा इसको अपनी जानिब खींचती है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज 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 हो जाएगी और एक पॉइंट पे 0, फिर ये फॉल कर लेगी टुवर्ड्स अर्थ। तो यहां ये हम कहेंगे ये रिटार्डेशन बन जाती है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, तो ये रिटार्डेशन बन जाती है। तो बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स, तो उस वक्त रिटार्डेशन होती है और उस वक्त हम जी का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मुतालिक इंट्रोडक्शन था कुछ, तो जी का वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।